Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today it is 20th of June 2020. This is class 10th. Our subject is general science, and today we are going to discuss an important topic. So far as our chemistry portion is concerned, it is hydrocarbons. What are hydrocarbons? How the hydrocarbons have been classified? What's the general formula for representing or for deriving a hydrocarbon? Firstly, we will go to study what are hydrocarbons. Hydrocarbons are, as the name indicates, hydro. Here hydro indicates hydrogen and carbons indicates carbon. These are actually the compounds of hydrogen and carbon. What are hydrocarbons? The compounds of hydrogen and carbon. These are the compounds of hydrogen and carbon, or we can say the compounds which are formed by the combination of hydrogen and carbon. These are called as hydrocarbons. These hydrocarbons are actually living compounds, and these hydrocarbons have been classified into two categories. हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एक्चुअली जब हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिल जाते हैं तो वहां पे जो कंपाउंड बनता है उससे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं. एज द नेम इंडिकेट्स, हाइड्रो इंडिकेट्स हाइड्रोजन एंड कार्बन इंडिकेट्स कार्बन. दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. एंड दीज हाइड्रोकार्बन, ये जो हाइड्रोकार्बन है इनकी क्लासिफिकेशन हुई है. दे हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. हाइड्रोकार्बन्स have been broadly classified into two categories. Number one, saturated hydrocarbons. What are saturated hydrocarbons? Saturated hydrocarbons are those hydrocarbons where there exists only single bond between the consecutive carbon atoms. Saturated hydrocarbons हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है. कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा. So we can say that saturated hydrocarbons are those hydrocarbons where there exists a single bond between consecutive carbon atoms as well as carbon and hydrogen atoms. And the general formula for representing these saturated hydrocarbons, it is CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. Saturated hydrocarbons are those carbons in which there exist only single bonds, and the general formula for representing these saturated hydrocarbons, it is CnH2n plus 2, where C is the number of carbon atoms. For example, if we consider here Cn equal to 1, अगर हम यहाँ पे ऐसे कहेंगे n is equal to 1, if n is equal to 1, then it will be C1 H2 into n के बदले 1 plus 2, तो ये बनेगा C1. 1 हम लिखे या ना लिखे, अगर C के साथ हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसका मतलब है कार्बन एक है, H 2 1 is 2, 2 और 2 4. It is CH4. This CH4 is called as methane because we are having a nomenclature when there is carbon atom 1, 2, 3, 4, 5. When there is one carbon atom, it is meth. When there are two carbon atoms, it is eth. When there are three carbon atoms, it is prop. When there are four carbon atoms, it is but. And when there are five carbon atoms, it is pent. In the same way, वो मैं आपको दूसरे लेक्चर में पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना आप याद रखेंगे जहां पे एक कार्बन होगा, दैट्स कॉल्ड एज मिथ, और ये क्या बनेगा? मीथेन, इसको हम कहते हैं. ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनके लास्ट पे हम जहां पे एक कार्बन होगा उसको मिथ कहते हैं, और मिथ के साथ हमें लास्ट पे ANE लगाना पड़ता है, क्योंकि कार्बन जब एक होगा, when there is only one carbon atom, it is myth. और जब ये सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड के लास्ट में हम इसको ऐड करते हैं ANE, देन इट विल बिकम METHANE, मीथेन. जिस हाइड्रोकार्बन के लास्ट पे ANE होता है, ANE, this is saturated hydrocarbon.
और अगर हम यहाँ पे इसकी डायग्राम को ड्रा करना चाहें, हम देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट होते हैं। जस्ट लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कार्बन एटम, और आपको मालूम है कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4 होती है, इट इज टेट्रावैलेंट। इसका एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये। और चूंकि आपको मालूम है कि हाइड्रोजन जो है इट इज वैलेंशियल कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये मान लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, इसका भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन, इसका भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन, इसका भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इससे मिलके बॉन्ड बनाता है, ये इससे मिलके बॉन्ड बनाता है, ये इससे मिलके बॉन्ड बनाता है, और ये इससे मिलके बॉन्ड बनाता है। तो ये है CH4। ये मैं आपको सिंपल ये भी सिखाता हूं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट होते हैं। देयर एग्जिस्ट ओनली सिंगल बॉन्ड इन दिस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को पाने के लिए, इनको ढूंढने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है CnH2n+2, और n जो है यहाँ पे इट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। और जब मिथ होगा और ये सैचुरेटेड होगा तो लास्ट में हम इस के साथ सुफिक्स ऐड करेंगे ANE, देन इट विल बिकम मीथेन। और मैं आपको एक एग्जांपल सिखाऊंगा। इफ n is equal to 2, if n is equal to 2, let n be equal to 2, तो आप लिख दीजिए आप C2H2 into n के बदले 2 plus 2, this will become C2H, 2 2s are 4, 4 और 2 6, it is C2H6। when there are 2 carbon atoms it is it, और इसके साथ आप अटैच कीजिए ANE, चूंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, this will become ethane, this will become ethane, ETHANE, ethane। ये जनरली इंशाल्लाह इसको हम जब कंटिन्यू करेंगे मैं आपको इसके बारे में डिटेल्ड पढ़ाऊंगा। दिस विल बिकम ईथेन। इसी तरह जब यहाँ पे कार्बन 3 होंगे C3H8, इट विल बिकम प्रोपेन। तो यहाँ पे एक सीरीज बनती है जिसको हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। द डिफरेंस ऑफ कार्बन एटम्स इट इज 1 एंड डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इट इज 2। पहला कंपाउंड हमारे पास बनता है CH4, दूसरा बनता है C2H6, तीसरा बनता है C3H8। द डिफरेंस इज, एक तो यहाँ पे कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान एक कार्बन एटम की का फर्क है, डिफरेंस है। C2H4, C2H6, C3H8, C4H10। तो डिफरेंस ऑफ कार्बन एटम्स इट इज ओनली 1। और हाइड्रोजन एटम की डिफरेंस क्या है, इट इज H2। तो ये जो होमोलॉगस सीरीज हमारे पास है, the difference between the consecutive members of this homologous series is CH2 ग्रुप की वहां पे डिफरेंस रहती है। तो these are called as saturated hydrocarbons, and these saturated hydrocarbons जो है इनका एक ही टाइप है जिसको हम कहते हैं अल्केन। क्या कहते हैं, अल्केन। यहाँ पे जो अल्क जो है इट रिप्रेजेंट्स द मिथाइल ग्रुप। कौन सा मिथाइल ग्रुप होगा यहाँ, ये रिप्रेजेंट करता है कितने कार्बन एटम हैं। और ANE रिप्रेजेंट करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या रिप्रेजेंट करता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अल्क का यहाँ पे मानिए आप ऐसे लिखिए, ये दिखाता है कितनी कार्बन एटम है। अगर एक है तो ये मिथेन, अगर 2 है तो ईथेन, अगर 3 है तो प्रोपेन। इन द सेम वे यू कैन derive various members of the series of saturated hydrocarbons. This is all about saturated hydrocarbons. इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं अल्कीन, दूसरे को अल्काइन कहते हैं। इंशाल्लाह वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।